Hello students, today I am going to teach you Civics chapter number 24, Understanding Media. In this chapter we will read about the role of media, types of media, how media impacts our day-to-day life, how it is very significant in democracy. Everything we will read in this chapter. Okay. Now we can say that media is a plural form of medium. That means it is the way of communicating information to people. कि किस तरह से मीडिया के थ्रू पीपल सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं या सोसाइटी की बात पीपल तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है. ओके. The media plays a significant role in democracy. It provides us latest information. है ना? Whatever is done in our surrounding. It is through media we are able to know about the working of the government. Media and democracy are the complementary to each other. Okay. So here we can say media refers a various way through which we communicate in the society. What are that ways? That ways are telephone, television, radio, TV, internet, social media, many more things. Okay. Now you can see here we have to read the public opinion and media, how they are influence each other. Media, we will read about the media ethics and accountability and checks and balance, that we will read here. And just look this warm up exercise. Here 3 pictures are there. One shows a newspaper, another says news channel room, and another is the logo of the Doordarshan. So these all are very familiar for us. सभी ने ये सभी देख रखा है. हाँ, तो ये जो लिंक है, can you establish a link between 3 images? Yes, we can establish a link. These all are the ways of communicating information. तरीका है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं सोसाइटी में. Isn't it? Okay, now let's explain the line by line description of this chapter. Okay. The people in a democracy elect their representatives who form the government, provide inputs for all governmental activities, and enjoy freedom of speech and expression. The voice of the people and their opinion is a characteristic features of democracy. Let us learn about the significance of people's voice and their role in a democratic setup. देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इंडिया क्या है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है. ठीक है. तो ये जनता है वो जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं वो उनको प्रोवाइड करती है, इनपुट्स देती है. हाँ, साथ ही साथ जनता के पास ये भी अधिकार होता है, बोलने का अधिकार, अपने एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसका अधिकार उनके पास होता है. वो यदि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो उनको सही होती ना लगती हो, नागवार गुजरती हो जनता के लिए, तो वो उसके खिलाफ अपनी वॉइस दे सकता है, पब्लिक ओपिनियन. ये डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. हाँ, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक पुट देयर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, तो अब ये पब्लिक ओपिनियन कैसा हो सकता है, क्या उनका रोल है इन डेमोक्रेटिक सेटअप में. लेट्स सी. और ये पब्लिक ओपिनियन जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो कौन से मीडियम के थ्रू? वो मीडियम है मीडिया.
ठीक है। पर पहले हम थोड़ा देख ले कि वो पब्लिक ओपिनियन क्या क्या है, ठीक है। Public opinion refers to the views of common people on issues of their interest. Public opinion is neither the opinion of experts nor the opinion of the majority, but refers to a general opinion on a issue. अब ये जो पब्लिक ओपिनियन है, किसी एक इंडिविजुअल की आवाज़ नहीं होती है, या किसी एक मेजॉरिटी ग्रुप की आवाज़ नहीं होती है, ना ही किसी एक एक्सपर्ट्स की है किसी आवाज़ होती है। ये एक मीन्स कॉमन पीपल की आवाज़ होती है, ठीक है। और ये जो आवाज़ होती है, जो उनके व्यूज़ हैं, जनरल होते हैं, ना कि किसी एक्सपर्ट्स और किसी मेजॉरिटी की होती है, ठीक है। जनरल व्यूज़ है उनके जो सामने गवर्नमेंट के सामने रखती है कॉमन पीपल। फिर पब्लिक ओपिनियन इज़ कंसिडर्ड अ लॉजिकल व्यू ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विथ अ डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकर्स। अब कुछ ऐसा है जो कि जनता के लिए वो सही नहीं हो रहा है, तो वो ओपिनियन रख सकती है, और जो डिसीजन मेकर है, जिसने ये डिसीजन लिया है, तो उनको उस व्यू के आधार पर अपने डिसीज़न को भी चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मामले आए भी हैं जो कि कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ रूल्स तो लेके आती है, लेकिन जब बहुत सारे विरोध और पब्लिक उसके अगेंस्ट में बोलती है, तो फिर कुछ नए अमेंडमेंट लेकर फिर उस नियम को वो लागू करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन, public opinion can change over a period of time. This is because the issues that capture the attention of the government and people change with time. Means ये जो है public opinion है, समय के साथ चेंज भी हो जाती है, पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये ख़त्म भी हो जाती है। उनका केवल क्या रहता है कि सरकार का ध्यान उनकी बातों पर जाए। This is a reflection on the diversity of public ओपिनियन। नाउ नेक्स्ट इज मीडिया। अब ये जो पब्लिक ओपिनियन है, मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके थ्रू, कौन से मीडियम के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचती है। कोई जाकर उनके सामने खड़ा होता नहीं, ये मीडिया है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को पब्लिक की, कॉमन पीपल की बात पता चलती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, पब्लिक ओपिनियन इज फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड मेनली थ्रू द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं मास मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को पता चलता है। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस सच एज रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट, ठीक है। इनके थ्रू ये जो है पब्लिक अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकती है थ्रू द मास मीडिया और थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखो, मास मीडिया है तो मास मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, ये जो मीडिया है इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रिंट मीडिया और एक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको मास मीडिया भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब प्रिंट मीडिया देखो, द प्रिंट मीडिया कंप्राइजेज न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, periodicals, magazines and books. Print media refer to sheds lights on issues of current significance, builds public opinion in the particular issues, provides a forum for the people to express their views and provides information about events all over the world. तो ये सबसे पहले ये प्रिंट मीडिया है, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आते हैं न्यूज़पेपर हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया में आ गए। अब इसमें क्या है, इनका काम क्या है, शेड्स लाइट ऑन इश्यूज ऑन करंट सिग्निफिकेंस, जो करंट में जो जिनका बहुत महत्व है न्यूज़ का, वो हमें उसके ऊपर वो प्रकाश डालती हैं। फिर बिल्ड पब्लिक ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर इश्यूज, अब वो जो इवेंट्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर जो पब्लिक का क्या राय है उसको भी बताती है मीडिया। फिर इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ को भी लोग इस प्रिंट मीडिया के थ्रू दे सकते हैं।
एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और साथ में ये जो प्रिंट मीडिया है पूरे वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी बताती है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। गवर्नमेंट की बातें भी पब्लिक को बताती है और पब्लिक की बातें भी जो उनके व्यूज़ हैं गवर्नमेंट को पता चलते। तो इस तरह से ये एक चैनल का काम करता है मीडिया, ओके, मीडियम है। नेक्स्ट है such as newspapers and magazines not only provide information about national and international issues but also give information on various political organization and the policies and programs of the government। अब ये जो न्यूज़पेपर है, जनरल्स है, मैगजीन्स है, ये सिर्फ ये नहीं बताते कि ये क्या नेशनल न्यूज़ है या नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, सिर्फ इसके नहीं। जैसे अभी कोविड है तो सिर्फ कोविड की ही न्यूज़ नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं उनके बारे में बताती है, जो गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम लेके आ रही है उसके बारे में भी बताती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर आर एन इम्पॉर्टेंट मीडिया विच फॉर्मुलेट, मोल्ड एंड एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन। That is why they are often called the lighthouse of democracy। एकदम इसको याद रखना कि ये जो न्यूज़पेपर है is an important medium, formulate, mold and express public opinion। That's why they are often called the lighthouse of the डेमोक्रेसी। यदि ये ना होगा, मीडिया नहीं होगा, ये न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे तो ये उन सारी बातें गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट को हमारी बातें नहीं पता चल पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द फॉर्म ऑफ रेडियो, टेलीविज़न and the internet is audio visual in nature which seeks to bring about social transformation, educate the masses on sensitive issues and analyze policies and program of the government is electronic media। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स है जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, ऑडियो विजुअल है, जो थिंग्स है उसको हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ला सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमें सोशल इन्फॉर्मेशन और ये जो थिंग्स है वो एजुकेट करती है मास में, पीपल को मास ऑन सेंसिटिव इश्यूज़ पे। बहुत सारी सेंसिटिव इश्यू में उनको पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को बताया जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इट ब्रॉडकास्ट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम फॉर पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस। सबको मालूम है कि हम टीवी में आजकल जब भी न्यूज़ खोलो तो हमें डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या एक बहुत ही हेल्दी प्लेस होता है जहाँ पर जैसे कुछ भी प्रोग्राम से कुछ भी इश्यूज़ है वो सभी बैठ कर वहाँ पर यदि डिबेट होता तो लोगों को उनके बारे में पता चलता है, उस इश्यूज़ के बारे में, ठीक है। अब सच एज रेडियो, टेलीविज़न अनलाइक प्रिंट मीडिया कैन रीच अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। ये जो रेडियो टेलीविज़न है प्रिंट मीडिया से ज़्यादा ये लार्जर एरिया को कवर करता है एंड हेल्प ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू फॉर्म एन ओपिनियन। और हर एक सोसाइटी को ओपिनियन देने के लिए मतलब हेल्प करती है। इंफॉर्मेशन इज़ मोर इफेक्टिवली डिसमिनेटेड थ्रू रेडियो इन रूरल एरियाज़। हाँ, और इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। डिसमिनेटेड मीन्स स्प्रेड करना थ्रू रेडियो इन रूरल एरिया सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस एरियाज़ हैव एक्सेस ओनली ऑन टू रेडियो। वहाँ रेडियो ही केवल एक्सेस हो सकता है, टेलीविज़न नहीं हो सकता है। तो सपोज तो वहाँ रेडियो पहुँचा हुआ, तो ये जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। कोई भी न्यूज़ रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के थ्रू कोई भी न्यूज़ प्रिंट मीडिया के बजाय जल्दी स्प्रेड होता है, ठीक है। आपने देखा होगा भी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मन की बात करते हैं तो वो रेडियो पर करते हैं, रेडियो के उनके मन की बात गांव-गांव तक लोगों को पहुंचे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेडियो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो जिससे स्प्रेड बहुत जल्दी करता है। अब तो मोस्टली शहरों में तो रेडियो यूज़ नहीं करते, लेकिन गांवों में तो बहुत ज़्यादा
लोग इनको यूज़ करते हैं और सुनते हैं न्यूज़ वगैरह उसी से रूरल एरियाज़ में। सच एज सिनेमा टू हेल्प्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक। अब यहाँ पर बोलते हैं यहाँ सिनेमा भी बहुत पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अलॉन्ग विथ स्टोरीज, म्यूजिक, ब्यूटीफुल लोकेशंस एंड एंटरटेनमेंट, मेनी सोशल प्रॉब्लम्स सच एज जेंडर बायस आर ऑफन पोर्ट्रेड इन दिस सिनेमा। जो अभी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है हमारे सोसाइटी में है, जेंडर बायस है, फिर इनइक्वालिटी है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको इन सिनेमा और वगैरह के थ्रू लोगों को बताया जा सकता है और उनमें जागरूकता लाया जा सकता है। दिस इनकरेज द ऑडियंस टू थिंक अबाउट सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड एलिसिट्स रिएक्शन फ्रॉम देम। उनमें जागरूकता आएगी तो वो उसके ऊपर विचार करेंगे और उसके ऊपर अपने रिएक्शन दे सकते हैं ना। तो कई सारी चीज़ें ऐसे जैसे जेंडर बायस है, तो जेंडर बायस हो रहा तो इसमें जागरूकता लोगों में लाया गया, अभियान छिड़ गई, लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, इस तरह से, या सेव गर्ल चाइल्ड। तो ये एक जागरूकता सोशल इश्यूज़ के ऊपर इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बहुत जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सम मूवीज ट्राई टू डील विथ इश्यूज दैट सिटीजन फेस ऑन डे टू डे बेसिस while some are meant for pure entertainment। अब यहाँ पर मूवीज़ है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सिनेमाज़ हैं, है ना, मूवी जो है उसमें बहुत सारे डे टू डे जो सोशल इश्यूज़ है या सिटीज़न नागरिक जो फेस करते हैं उनको भी दिखाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ मूवीज़ के नाम लिए गए हैं, उनका नाम है मिर्च मसाला, डोर, हाँ, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जिसको डील किया गया था। बहुत सारी मूवी ऐसे देखोगे आप तो जो कि वुमेन एम्पावर्ड से रिलेटेड मूवी को लोगों के सामने रखा गया, जिससे क्या हो, वुमेन सशक्तिकरण का पता चले। अभी शायद एक गुंजन से जो लेडी फाइटर प्लेन जो चलाने वाली, उस पर है, दिखाया गया है, पिक्चर आई है। तो ये सारी चीज़ इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी में, तो उन सारी बातों का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखो डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है, मेड ऑन वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज ऑल्सो लीव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन व्यूअर्स एंड सेंसिटिव देम टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बहुत इम्पैक्ट पड़ती है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जैसे स्वदेश, निर्जा, फिर मांझी, तलवार, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हैं बहुत सारे ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं लोगों या व्यूवर्स पर। और जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे वेरियस सेक्शंस जो सोसाइटी फेस कर रहा है तो लोगों को उनके बारे में पता चलता है। उसी तरह सच एज इंटरनेट also plays a significant role in spreading vital news and formulating public opinion। तो यहाँ पर हमने देखा इंटरनेट के थ्रू, फिर मूवी है, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के थ्रू, हाँ, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो के थ्रू किस तरह से हम पब्लिक ओपिनियन गैदर करते हैं। ठीक है, पता चलता है पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट हमारा देखो ना अनदर पैराग्राफ, the relationship between media and public opinion is such that they both influence and affect each other। यहाँ पर कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। The various forms of mass media help in formulating public opinion on issues of importance। जैसे in a democratic political setup, people enjoy the freedom to express their opinion on issues of their concern। The media helps people in voicing their opinion on pressing social issues and topics। ये जो बहुत सारे ऐसे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में कि अपने कंसर्न से रिलेटेड है तो उस पर तो वॉइस होता ही है, लोग रैली धरना करते ही हैं, लेकिन जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टेलीविज़न है, वो बहुत सारे सोशल इश्यूज एंड टॉपिक्स पर भी लोगों को
हेल्प करती है वॉइसिंग करने के लिए, अपने ओपिनियन बताने के लिए। हाँ, जैसे बहुत सारे अभियान चल जाते हैं कि अभी कि आप रेटिंग करो, इसमें इतना मतलब कितने आप इससे सहमत हो या नहीं, हाँ या नहीं, तो आप उस पर रेटिंग कर, तो लोगों को उसमें जागरूकता, वो है क्या चीज़, उसके बारे में फिर वो लोग जानना शुरू करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, herein find out the names of 5 movies or documentaries that deal with real life situation and made a difference in your life। हाँ, यहाँ पर आप एक कुछ ऐसे मूवीज़ के नाम और डॉक्यूमेंट्रीज़ के नाम मुझे बताओगे सोचकर, जो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आप लोग काफ़ी देखते हो, हम लोग लाइव क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द मीडिया एंड डेमोक्रेसी। पहले ही मैंने बताया था, मीडिया एंड डेमोक्रेसी है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मीडिया के थ्रू जो पार्टीज़ है, जो गवर्नमेंट है, उसको क्या पता चलता है कि जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मीडिया के थ्रू ही जो पब्लिक है उनके पास वो समझाया जाता है। तो दिस वे जो मीडिया है एक चैनल का काम करती है, एक मीडियम का काम करती है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच। या बहुत सारे पब्लिक ओपिनियंस होते हैं जो गवर्नमेंट मीडिया के थ्रू जानती है, फिर उस पर एक्ट करती हैं। तो इस तरह से मीडिया एंड डेमोक्रेसी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, पब्लिक ओपिनियन इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सही बात है कि पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा तो गवर्नमेंट भी सही तरह से वर्क कर सकती है। द मीडिया ऑन इट्स पार्ट प्रोवाइड्स करेक्ट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द occurrence of events and at the same time provides a platform to the people for expressing their views। और मीडिया भी बिल्कुल अनबायस्ड होकर, पक्षपात रहित होकर, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की बातें हैं वो पब्लिक को बताती है। और पब्लिक के लिए भी मीडिया एक प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सप्रेशन देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ देने के लिए, अपने विचार देने के लिए। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी एक्ट्स अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। क्लियर? Current affairs programs, interviews with political leaders and policy makers, social activists, subject matter experts and people who make news help in providing information and creating opinion among the people। बहुत सारे जैसे प्रोग्राम्स है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स है, या पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरव्यूज़ जो होती है, सोशल एक्टिविस्ट के साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ जो मीटिंग होते हैं, या उनके बारे में जो दिखाया जाता है मीडिया में। तो इससे क्या पता चलता है पीपल को, जो पॉलिसीज़ है उनको कई तरह के इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कि क्या है वो पॉलिसी और वो किस तरह से लागू होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, जैसे जन धन योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये सारी योजनाएं क्या, ये पॉलिसीज़ क्या हैं, इनके पीछे क्या बेनिफिट है, तो ये सब पॉलिसीज़ मेकर वो सामने आकर बताते। तो किसके थ्रू बताते हैं? वो मीडिया के थ्रू ही सामने आते हैं और बताते हैं, जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। यदि वो कोई पॉलिसी ऐसी होती है जो पब्लिक को अपने वेलफेयर के लिए नहीं उचित नहीं लगता, तो वो उसके मीडिया के थ्रू अपने व्यूज़ गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये तरीका है, इस तरह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी और मीडिया का बहुत ही क्रूशियल रोल है। नेक्स्ट है, द मीडिया इंश्योर्स दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर आंसरेबल टू द पीपल। In the recent past, we have observed how instances of corruption and collaboration of the members of the government have been highlighted by the media. The media thus acts as a watchdog of the democratic government। मतलब यहाँ पर बताया कि मीडिया जो है एक वॉचडॉग, एक बिल्कुल
इस तरह से काम करता है, एकदम जागरूक रहता है। उसने कई तरह के करप्शंस, बहुत सारे, मतलब आने वाले दिनों में आपने बहुत सारे घोटाले वगैरह सुने होंगे। तो ये किसके द्वारा घोटाले उजागर होते हैं? जब लोग पता चलता है तो न्यूज़ के थ्रू हमारे सामने आता है, फिर पब्लिक उससे अवेयर होती है, फिर कई तरह के मतलब उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से मीडिया हमेशा ये कोशिश करती है कि जो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नमेंट तैयार हुई है, वो आंसरेबल हो पीपल के सामने, उनके सामने जो वो उसके जो गलत काम है तो वो उसके लिए वो सामने आकर जनता को अपने व्यू दे, अपनी बातें बताए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फिर मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। हर एक मीडिया का भी कुछ एथिक्स है और कुछ पारदर्शिता होती है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द मीडिया इन ए डेमोक्रेसी। ये तो बहुत ही आप आगे देख चुके हो कि मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, cannot be disputed. However, this does not imply that the media is not expected to follow a code of ethics. The influence exercised by the media over people has often led to attempts by ruling government to control it, leading to a struggle between the government and media. अब इसमें क्या होता है, हर एक मीडिया का तो अपना एथिक्स होती है, लेकिन क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है हमेशा कोशिश करती है कि उसके ऊपर वो कंट्रोल करके रखे। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो गवर्नमेंट की है वो लोगों को ना पता चले या कुछ इस तरह से। तो मीडिया हैज़ इन्वॉल्व अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और कोड ऑफ कंडक्ट विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर रिपोर्टिंग एंड राइटिंग्स। तो इस तरह से जो रिपोर्टिंग और राइटिंग्स होती है उससे लोगों को पता चलता है, रिफ्लेक्ट होता है। अब क्या है, सबसे पहले कि डिस्टॉर्शन एंड sensationalization of the news should be avoided and the media should consciously provide fact based information and news. इस तरह से होना चाहिए कि जो भी है वो सही न्यूज़ लोगों के सामने लाए। कुछ ऐसे गलत बातें जो कुछ दंगा भड़काने वाला या जो जिसके पीछे सबूत ना हो वो मीडिया लोगों के सामने ना पेश करे तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। फिर potentially controversial news and reports should be verified adequately and reported with restraint. जो controversial news जिसे कैसे कह सकते हैं, जिसके पीछे सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं पता है या जिसके पीछे कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को उसके बारे में यदि बताए तो उसका इम्पैक्ट गलत होगा। तो उसका रिपोर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपरली वेरीफाइड करके, हाँ, और मतलब थोड़ा इस तरह से पेश करना चाहिए कि लोगों पर उस पर इम्पैक्ट सही जाए। हाँ, फिर द मीडिया शुड ऑलवेज एंडेवर टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड रिपोर्ट ऑफ इवेंट्स। किसी भी जो रिपोर्ट है उसको बैलेंस्ड रूप से दिखाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम नेगेटिव है किसी का तो नेगेटिव ही उसको दिखाना है तो एकदम। तो इससे क्या होता है कि जब न्यूज़ आदमी पढ़ता है तो उसके बारे में बिल्कुल जो है नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। दैट इज़ बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि दैट इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट टू द रीडर्स टू फॉर्म देयर ओन कंक्लूजन्स। Thus, the nature of information provided by the media should be reliable and unbiased. इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहने का है कि जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से इस तरह से पेश होना चाहिए कि जो पब्लिक है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उसको सही मान रहा है या गलत मान रहा है। ये नहीं कि यदि आप न्यूज़ में या जो मीडिया है वो उसको गलत मान रहा तो एकदम गलत तरीके से नेगेटिविटी से उसे दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कहा गया द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया शुड बी रिलायबल एंड अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मीन्स बिल्कुल ये नहीं कि ये मेरा आपके साथ रिलेशन अच्छा तो मैं आपके बारे में अच्छा ही दिखाऊंगा भले ही आप कितना गलत करो, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउ एवर डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। It is for this reason that the media should not be controlled or influenced
इन इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। अब यहाँ पर कहा जाता है राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लिखना डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ मीडियाज, ये मीडिया का स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो उस तरह से वो लिखे। फॉर दिस रीजन द मीडिया शुड नॉट बी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस्ड इन इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़, उसका अदर दूसरे का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी गवर्नमेंट है तो वो उसके ऊपर बाध्य ना करे कि आप इसी तरह का न्यूज़ लोगों को शो करो। फिर मीडिया शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू इशू ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस rather than focusing on sensational न्यूज़। अब यहाँ भी इनका क्या है, एक मीडिया का एथिक्स बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या नेशनल इम्पॉर्टेंस है जिसका, उस न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि सेंसेशनल न्यूज़ जो कि लोगों के बीच में नेगेटिविटी लाए और लोगों में आपस में झगड़े झंझट और ये एक दूसरे के बारे में सही ना विश्वास वगैरह को कम करे, ऐसी न्यूज़ को नहीं दिखाना चाहिए।